نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان، قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب کون سے لوگ خسارے میں ہیں کہ جو خسارہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی خسارے میں ہے۔ اب بعض اوقات انسان اللہ سے دوری کے سبب، قرآن اور حدیث سے دوری کے سبب انسان خسارے کی طرف چل پڑتا ہے، پھر ایسا چلتا ہے کہ انسان خسارے میں ہی رہتا ہے، خسارے میں ہی پروان چڑھتا ہے اور خسارے میں ہی اس کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ اب انسان جو عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، وہ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کھلا بتا رہا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو عقل سے محروم ہیں وہ ان کے لیے کہانیاں ہیں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تو حضور اکرم قرآن سے جو بتلاتے، تو جب منافقین باہر نکلتے تو ان سے آنے والے پوچھتے کہ وہ کیا بتلا رہے ہیں، تو وہ منافقین ان سے کہتے کہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اب وہ عقل والے نہیں تھے، ان کی عقل پر تالے پڑے تھے کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے کہ یہ تو قصے آنے والوں کے لیے کھلا نشانیاں ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر چلیں، گامزن ہوں تو کامیابی ملے گی۔ اگر ان رستوں پر یا ان چیزوں سے نہ بچے کہ جس سے دوسری قومیں ان گناہوں میں پڑی اور اللہ کے عذاب کو آ لیا، اور پھر اللہ کے عذاب میں ایسے دھنسے کہ کچھ تو زمین میں دھنس گئے، کچھ ہواؤں میں اچھال دیے گئے روئی کے گالوں کی طرح، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے پکڑ لیا مختلف قسم کی بیماریاں قحط دے کر۔ اب لیکن جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے وصال ہونے لگا، جانے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس کی خدمت میں پیش ہوئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، کون فوت ہو رہا ہے، کون جا رہا ہے اس دنیا سے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ بتلانے لگے کہ عرش ہل رہا ہے، عرش جشن منا رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال میں آیا، ذہن میں، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں۔ وہ دوڑے ہوئے گئے، اور جیسے جب ان کے گھر پہنچے تو ایسے بچتے بچاتے جیسے کوئی لوگوں کا ہجوم ہو تو ان کو بچاتے ہوئے انسان چلتا ہے، اس طرح چلنے لگے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، ایک آدھ صحابی موجود تھے۔ تو صحابی بڑے حیران ہوئے کہ پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ تو خالی ہے کمرہ، گھر خالی ہے، لیکن آپ اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے کسی کو بچا کر چل رہے ہیں کہ کوئی روندا نہ جائے، کوئی متاثر نہ ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تو پتہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے موجود ہیں یہاں، اور اتنی تعداد میں موجود ہیں کہ میں ان کو بچاتے ہوئے چل کر پہنچا یہاں تک،
اور मेरे बैठने की जगह नहीं थी, एक फरिश्ते ने परों को समेटा तो मैं बैठने की जगह बनी। तो ये ऐसा जब आप दुनिया से जाएं तो ऐसा हो कि जश्न मनाएं, जश्न सा समा हो, अर्श पर, आसमानों पर, जमीन पर, रोग रंजीदा हों, परेशान हाल हों, रो रहे हों, आपके दिल लगी में कि आपके जाने पर अफसुर्दा हो, ऐसी अल्लाह मौत अता करे, ऐसी जिंदगी अता करे कि लोगों की तरफ मकनातीस की तरह लोग खिंचे हुए आए। तो याद रखें, इंसान जो बंदा अल्लाह के ताबे होकर चलता है तो फिर उस पर जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो आसमानों पर जश्न का समा होता है, उसके आने का तैयारियां होती हैं, उस पर जश्न मनाया जाता है, तैयारियां की जाती हैं कि आज अल्लाह का महबूब शख्स आ रहा है। याद रखें, और जो लोग अल्लाह से दूरी इख्तियार करते हैं, दीन से दूरी इख्तियार करते हैं, नमाज से दूरी इख्तियार करते हैं, जिक्र अज़कार से दूरी इख्तियार करते हैं, याद रखें उनकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, उनके लिए जिंदगी को तंग कर दिया जाता है, उनके लिए मौत को तंगी का सबब बना दिया जाता है, कब्र की तंगी का सबब बना दिया जाता है और दुनिया और आखिरत में रुसवाई मिलती है। याद रखें, इमाम राजी रहमतुल्लाह का कौल है कि मैंने सूरह असर का मतलब एक बर्फरोश से समझा कि जो बाजार में आवाजें लगा रहा था, कोई है, रहम करो उस शख्स पर कि जिसका सरमाया गुला जा रहा है, उस शख्स पर रहम करो कि जिसका सरमाया गुला जा रहा है, कि गुल रहा है, गुला जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि ये है सूरह असर का तर्जमा, मतलब कि इंसान खसारे, इन इंसान लफी खुस का मतलब ये है कि बेशक इंसान सारे का सारा खसारे में है, लेकिन वो लोग नहीं कि जो दीन पर अमल पैरा हुए, अल्लाह के रास्ते पर चले और अल्लाह के मुताबिक जिंदगी को बसर किया और आखिरत भी उनकी संवर गई और दुनिया भी संवर गई। लेकिन याद रखें कि जो लोग इंसान अपनी जिंदगी को जाया कर देते हैं, अगर जाया की जाए या गलत कामों में सर्फ की जाए, अपनी जिंदगी को डाल दिया जाए, तो ऐसा इंसान खसारे का खसारा में है और वो खसारे में रहता है। लेकिन आज अगर आपके लिए मैं इंतहाई बामुजर्रब वजीफा लाया हूं कुरानी, कि जिसके करने पर चाहे दुनिया का खसारा हो या आखिरत का खसारा हो, उससे आप बच जाएंगे, महफूज रहेंगे और आपका दिल, दिमाग, जिस्म, रूह अल्लाह के ताबे होगी और अल्लाह के हकामात पे जब चलेंगे तो आप खसारे में नहीं होंगे। अगर अल्लाह के मुताबिक ना चले या दीन के अहकामात की रोशनी पर ना चले तो फिर आपकी जिंदगी भी खसारे में है और आपका मरना भी खसारे में है। आप इस खसारे से निकलने के लिए, जब इंसान दीन से दूर होता है तो ये खसारा इंसान का मुख्तलिफ इकसाम में बढ़ जाता है। जैसे इंसान अज़दवाजी जिंदगी में खसारा हो जाता है, नाकामी की तरफ चला जाता है, बाज रिज़्क की तंगी के खसारे में चले जाते हैं और बाज रिश्तों के ना होने या अच्छे रिश्ते ना आने का सबब खसारे में रहते हैं, या बाज लोगों की औलाद ना होना इंसान खसारे में है, इंसान मुफलिसी की जिंदगी में बसर करता है, गुजारता है, तन्हाई के आलम में रहता है और बाज लोगों पर ऐसा खसारा आता है कि इंसान को जिल्लत की जिंदगी बसर करनी पड़ती है, अरूज से जवाल की तरफ और इज्जत से पस्ती की तरफ, नाकामी की तरफ चल पड़ता है। तो इस सारों मसाइल से निकलने के लिए आज ये वजीफा है कि जो शख्स अव्वल और आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर और सूरह असर को 100 मरतबा पढ़ ले, रोजाना 21 दिन अमल करें, आप दुनिया के और आखिरत के खसारे से महफूज रहेंगे और अल्लाह आपको दुनिया में भी
खुशगवार जिंदगी बसर करने वाला बनाएगा, कामयाबी वाला बनाएगा और नाकामी से महफूज रखेगा, जिल्लत से महफूज रखेगा, इज्जत अता फरमाएगा। और आप जो जो मसाइल आपके साथ रोनुमा हैं या मसाइल पर चल रहे हैं या मसाइल में धंसे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी निकलेंगे। सदक़े की नीयत से ये शेयर करें वीडियो, हो सकता है कोई आपकी वजह से दुनिया और आखिरत के खसारे से निकल जाए। तो ये बेहतरीन सदका जारिया है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और इंशाअल्लाह अगर वो ऐसी परेशानियों तकलीफ़ों से निकल आता है तो हो सकता है अल्लाह आपको भी निकाल दे उसके वसीले से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।